So we will start with our today's doubt session. Okay, and I hope that you all are going through the videos and you all are getting the concepts that I am throwing there. So I always emphasize that discipline is the key. Okay. This this line is very much close to my heart. Okay. If you are putting efforts on daily basis, then only you will be getting the result. Motivation is temporary. Okay. This discipline is permanent. Okay. This is a habit. If this habit is present inside you, there is nothing that can stop you to reach the result. It might be possible that it may take some longer time, but if you stick to it, you will be, I'm very much sure that you will be getting the result. Okay. Now let's go through the doubts, like what you all might be going through the videos and doubts might be coming in your path. So let's start picking up your doubts one by one. The first doubt that I remember is uh mail trigger for failed pipelines. Okay. Mail trigger for Yeah, I think this was resolved the other day. You yes. you So you showed us, but yes. that So video is not uploaded. sorry, That Suman. video actually. Yeah, hello, am I audible? Yeah. Yes. Yes. Audible. Audible. Yeah, but that last Sunday's video was not uploaded. That's the only thing. Okay. Nitin. Nitin. That Let session. let me check once again, Suman. Yeah, on 29th. Yes, yes, please. Okay, I'll just let you know. okay. Thank you. So mail trigger for Sir, failed pipelines. This is one of the thing. Now, yes, Mohit, are you saying something? यस सर सर मैं एक बार ना सर आप मेरे को सर डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बता दोगे क्योंकि सर मैंने वो वीडियो देखी थी सर वो पूरा इंग्लिश में सर इतना अच्छे से समझ नहीं आया वो क्योंकि सर उसमें जरा भी हिंदी नहीं है Okay. उसका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस वाला वीडियो Okay. हाँ सर क्योंकि सर मेरे ना इधर भी प्रॉड एनवायरमेंट है लेकिन मेरे को नहीं पता है डेप्थ से प्रॉड में किस तरीके से लिखे जाते हैं Okay. Deployment process overview you need, right? Okay. What else? What other doubts that you guys came across? Or or क्या doubt है? Hello, sir. Prince here. Who is this? Prince. How are you, Prince? Prince, sir. Fine, sir. Mm-hmm. Yes, please tell. My doubt is where is the disk available in the Spark cluster? Like you told that when we persist any data Mm-hmm. frame, then we can just persist in a RAM and disk. RAM is I'm watching that RAM is available here, but where is the Mm-hmm. disk? Now, disk is behind the scenes. That configuration you are not able to see actually. Okay. Disk is behind the scenes. When I talk about nodes, you just think that it is a computer. Okay. So in a computer, RAM and hard disk, both things are present. So when we configure, we are only able to see the RAM, but not the disks. Getting the point? Yes, sir. I have one more question. What about the how take function work? Like when we are entering one data frame, which is huge data Mm, frame, like a 2 terabyte data frame, mm, and you told that when we apply display method, then it mm. will throw a error like out of memory. If when we use take like 100 take, it means at least that data frame will come on the cluster. If my cluster is not able to handle that data set, then Mm. how take will work? Okay. It's not display. I have said about collect method, and this collect method will Yes, throw yes, error. sorry. Yeah. Okay. Yeah. I will explain that. Okay. I will explain that. What else?
Any other doubt? Any other doubt? Anyone has? नो सर, सर मेरा सर वो भी Yes. हो गया ईमेल वाला, वो Very भी good. सर मेरा इस बार हो गया सर। Okay, very good. So you got the issue? Issue मिल गया आपको, right? यस सर, वो लॉजिक ऐप से ही किया था मैंने, बस सब थोड़ा सा मैं उसमें वो पुश करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, फिर मैंने डायरेक्ट उसको फॉर ईच एक्टिविटी ली थी, तभी हो गया था। नहीं तो हाँ। मैं डायरेक्ट ब्लॉक टू कर रहा था, फॉर ईच खुद ही बन रहा था, तो उसमें दिक्कत आ रहा था। नाइस। मैंने बोला था ना आपको, ये लॉजिक ऐप से ही पॉसिबल है। हाँ सर, क्योंकि सर मेरा उस चीज से बहुत फास्ट हो रहा है, लॉजिक ऐप से ना जैसे ही मेरा ट्रिगर हो रहा है मेल, तो मैंने फिल्टर डाला, तुरंत तुरंत ट्रिगर हो जाता है, वो उसमें ब्लॉक में हाँ। तुरंत पहुंच चला जाता है, उससे चलिए, मेरा काम आसान हो गया सर। आपको एप्रिसिएशन मिला होगा ऑफिस में, हाँ? हाँ नहीं सर, अब मेरा उसमें बस थोड़ा सा एक काम और रह गया है उसमें, Okay. वो प्रोजेक्ट था ना, वो बस थोड़ा सा रह गया है, वो भी ऑलमोस्ट डन है, Okay. उसके बाद हो जाएगा मेरा। Nice. Very nice. Okay. Any other doubt? One more question I have. One more question. Please. Like how to Yes. create an external or unmanaged table, because path is not supporting on the, if I'm giving a path that is showing that this is not supporting. So How to for create that, unmanaged? yes. External table is same as the unmanaged table. Both names are used. Both are same. Vice versa. How to create? Yes, sir. How to create it? Yeah. Because So I'm unable to create it. yes. Suman shared one video. I mean, the date of the video, right? You asked this question few days back also, right? Prince? Yes, sir. Yes, sir. I asked. Suman shared the Haven't video got- number. Suman shared the video number. Suman, WhatsApp. are you here? WhatsApp. Yeah, in the WhatsApp. Yes, I have shared. Yes. Can you bring that video number once again? Can you Yeah, find I will it do and that. bring that in? Prince, he gives a thumbs up, but okay, I will do that once again. Yes. Prince? I have watched that video, that doubt class video that was. I have Right. watched that video, but yes, that was about the Unity catalog, because the path I am not getting there. That the path was from the we can get the path from the Unity catalog, but and there is no any explanation about the how to create external or unmanaged table there. No, that is only external table or unmanaged table. Have you created that table? सर Right now, is it created? Yes, sir. I have created. सर एक I डाउट can तो मेरे को भी था Share the screen. Yes. सर, इसी में से एक डाउट था मेरा, जैसे कि सर हमने एक्सटर्नल टेबल ड्रॉप कर दी, वो तो सर वहां से डेटा ड्रॉप नहीं हुआ, लेकिन दोबारा हमको माउंटिंग पॉइंट में इधर लेके आना पड़ेगा कैटलॉग में उसको, तो उस फिर दोबारा कैसे लेके आएंगे हम उस टेबल या डेटा को अपने उसमें, दोबारा से माउंटिंग पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, माउंट पॉइंट से नहीं, वहां पे आप डायरेक्टली जब टेबल क्रिएट करोगे ना, एक्सटर्नल टेबल, तो वहां पे एक लोकेशन नहीं। मेंशन करते हैं। नहीं सर, आपने मैनेज किया था, मतलब टेबल को ड्रॉप कर दिया था एक्सटर्नल टेबल को, लेकिन यहाँ से हमारी टेबल ड्रॉप हो गई थी, जो हाइव और उसमें हाइव वाले Right. उसमें से फोल्डर में से, फिर Right, उसके बाद वो डेटा हमारा उसमें जेन 2 पे पड़ा है, ADLS जेन 2 पे। मैं ये चाह रहा हूँ, अब मेरे को दोबारा डेटा यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे शो या दोबारा से वो यूज करना, तो कैसे यूज कर पाऊंगा मैं? आप स्क्रीन शेयर करो, आपके पास वो आपका एजोर पोर्टल का एक्सेस है, आपने जो क्रिएट किया था? नहीं सर, मेरे पास आपने क्रिएट किया था सर, मैंने फ्री एजोर यस सर, मेरे पास हाँ मेरे पास ये तो ये दूसरे का जो है, मेरे पास खुद का नहीं है, वो ऑफिस के। ओके, अजय है क्या? अजय है कॉल पे? अजय, आर यू हियर? नो प्रॉब्लम। सुमन, Yes. आपने क्रिएट किया था ना एक्सटर्नल टेबल, है क्या आपके पास? Correct. लॉगिन करेंगे क्या? ये वो मेरा पूरा तो फिर हम शुरू से सब कुछ कर रहे हैं, मेरा तो अभी चला गया था। ओके जो है आई कैन शेयर, बट वो टेबल हम लोग मतलब फिर से हमको सिर्फ नोटपैड हम ओके, नो प्रॉब्लम। इंपोर्ट किया था, फिर अभी पाइपलाइन बना रहे हैं। ओके, वेट। आई एम गिविंग यू अ कोड मोहित, मैं एक कोड दे रहा हूँ आपको, इस कोड के थ्रू एक्सटर्नल टेबल क्रिएट होगा।
ये कोड सेम टू सेम आपको चलाना है। ओके, दिस नहीं वन सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नहीं समझे। मतलब मैं आपने एक समझ टेबल गया। क्रिएट की थी। मैं समझ गया आपकी बात को। आप बोल रहे हो कि मैंने यूनिटी कैटलॉग में एक टेबल क्रिएट किया, राइट? आई हाँ, क्रिएटेड दिस टेबल, एक्सटर्नल। सपोज टेबल 1, ये एक्सटर्नल टेबल था। ओके, और इस टेबल से मैं पॉइंट कर रहा था ADLS Gen 2 को, राइट? यहाँ के डेटा को मैं पिक कर रहा था। जब मैंने ड्रॉप किया तो ये टेबल 1 ड्रॉप हो गया, बट डेटा यहाँ पे है मेरा ADLS Gen 2 में, हाँ, राइट? तो आप बोल रहे हो कि इसको यस यूज सर। करके फिर से ये टेबल कैसे क्रिएट करें? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? नहीं, अब वही डेटा मेरे को दोबारा से एक्सेस करना है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। इसी डेटा को यूज करके आपको यहाँ पे एक दोबारा से टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि आपने इसे अभी ड्रॉप कर दिया है, राइट? हाँ, गलती से ड्रॉप हो गया, मतलब बाई चांस। हाँ, तो तो उस तरीके का सिनेरियो उसी है। के लिए कोड मैं दे रहा हूँ। ये आपका कोड क्रिएट काम करेगा। ओके, ठीक है सर। दिस इज दैट कोड। आप फिर से टेबल क्रिएट करो, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम दो, जैसे मेरे टेबल का नाम है टेबल 1। ओके, और लोकेशन में ये लोकेशन आप पास करो, ये ADLS Gen 2 का जहाँ पे डेटा है। गेटिंग द पॉइंट? सर मेरे पास आया नहीं सर वो। क्या बोले? सर आपने का स्क्रीन शेयर कर रखा है, मेरे पास कुछ दिखा नहीं है ना। हाँ, स्क्रीन शेयर है। ओह सॉरी। अब दिख रहा है? नाउ विजिबल? यस सर, यस सर। ओके, सो दिस इज दैट कोड एक्चुअली। ओके, यूनिटी कैटलॉग है, इसमें आपका टेबल 1 है, ये एक्सटर्नल टेबल है। ये ADLS Gen 2 में कोई डेटा है उसको पॉइंट कर रहा है। आप बोल रहे हो कि ये टेबल 1 ड्रॉप हो गया बाय मिस्टेक, सो Yes, हाउ sir. कैन वी क्रिएट दैट टेबल अगेन? तो उसके लिए ये कोड है जो आपको डेटाबेस पे रन करना है। क्रिएट टेबल एंड देन टेबल नेम क्या है मेरा? टेबल 1। ये टेबल 1 मेरा टेबल नेम। टेबल 1। एंड देन लोकेशन, फिर लोकेशन में वो लोकेशन देना है जहाँ पे मेरा फाइल है ADLS Gen 2 का। जो ADLS Gen 2 का जो लोकेशन है, मतलब ये लोकेशन सेम देना। लोकेशन को दोबारा Exact. दोबारा से कर दो, एग्जैक्टली, तो वहीं पे हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ठीक क्रिएट है हो जाएगा। ओके, आपको वही कोड यूज करना है। मतलब जिस कोड को यूज करके आपने टेबल 1 क्रिएट किया था, टेबल 1 जब आपने क्रिएट किया होगा तब भी आपने यही कोड यूज किया होगा। यस सर, ओके, यहाँ तो सेम यही किया था। सेम कोड को आपको एग्जीक्यूट कर देना अगेन, फिर से टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके ओके, yes Prince, you were saying something here, external and unmanaged table. Yes, sir, I got it. We have to give this path while we have to Exactly, while right, doing right, the right, right. Correct. Got the This answer? is actually shared in the video only. I mean, you have shared it in the Yes. तो डिस्कस किया था हम लोग का वीडियो में, यही पाथ देने के लिए। maybe I have missed this one. Yes, you please go through that. I am sharing that, the date. Okay. Okay. Human will share. Okay. Okay. Now, once let's have a look at it. Piyush is here. Piyush, are you here? Yes, sir. Hello? Okay. Yes. तो इवेंट बेस्ड हो गया, वो जो ये था ना माइक्रोसॉफ्ट ट्रिगर, वो Right. रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए नहीं हो रहा। So it is done, right? Working fine. हाँ, इवेंट बेस्ड मतलब बाकी सब ट्रिगर हो रहा था, मगर इवेंट बेस्ड ट्रिगर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रिगर रजिस्टर होना चाहिए, राइट? Right. बाकी सब Exactly. ट्रिगर हो रहा था, टम्बलिंग विंडो हो गया और Very, जो शेड्यूल ट्रिगर है वो भी हो गया, मगर इवेंट बेस्ड ट्रिगर के लिए वो चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ट्रिगर। very good. तो मैं तो आप, पूछ रहा हूँ मतलब हाँ, इवेंट बेस्ड ट्रिगर के लिए वो चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रिगर, बाकी सब में Right. नहीं चाहिए। नहीं, बाकी सब में नहीं चाहिए, बाकी सब में नहीं चाहिए। ओके ठीक, थैंक यू। आप लोग रिवाइज करते रहना। ओके, आप लोग रिवीजन मत छोड़ना। मैंने बार इस चीज को आप लोगों के सामने बोला है कि आपका रिवीजन हमेशा 4 साइकिल में चलना चाहिए। ओके, मैंने बोला आज आप जो भी पढ़ो, कल कुछ भी शुरू करने से पहले वो रिवाइज होना चाहिए।
और ये 6 दिन चलना चाहिए वीक के अंदर, और एक जब वीक खत्म हो उस दिन एक पूरे वीक का रिवीजन होना चाहिए, और एक जब मंथ खत्म हो तब उस दिन एक पूरे मंथ में जो भी आपने पढ़ा वो रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद अगला रिवीजन क्वार्टरली लेवल पे होना चाहिए, मतलब 3 महीने पे। ओके। अगर आप रिवीजन मिस कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। ओके। आपको सब याद रहना चाहिए, जब इंटरव्यू पूछता है और आपके मुंह से जब आंसर इंस्टेंटली निकलता है तो उसको लगता है कि ये बंदा काम किया हुआ है। ओके। तो ये रिवीजन आप लोग करते रहना, कुछ भी भूलना मत, ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरा। ओके। ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है, आप लोग नोटिस करोगे जब आपको चीजें लगने याद रहने लगेगी लंबे टाइम तक, तब तुरंत आप कभी भी बोले, कोई भी बोलेगा कि हाँ इंटरव्यू लेना है, आप बोलेगे हाँ ठीक है 1 घंटे में ले सकते हैं, आप तुरंत रिवाइज करोगे और अपना बैठ जाओगे इंटरव्यू। अदरवाइज हमेशा आपको लगेगा कि मुझे ये चीज याद नहीं आ रही, ये चीज याद नहीं आ रही, ये चीज याद नहीं आ रही, और हमेशा आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील होना है, तो आपको इस रिवीजन साइकिल से गुजरना पड़ेगा, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। ओके। ओके। तो और ये मेल ट्रिगर फॉर फेल्ड पाइपलाइंस, सो पीयूष एंड सुमन, ये देखो काम कर रहा है परफेक्टली फाइन। ओके। और मेल भी आ रहा है मेरे पास। अ, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा एरर उठ कर आ रहा है, जो भी एरर है ये डायनेमिकली पूरा का पूरा एरर पिकअप हो रहा है, और मुझे मेल आ रहा है फाइनली। ओके। आई एम Okay. गेटिंग द मेल्स। ओके। देखना कोई इश्यू है आप लोगों को तो फिर बताना, फिर आप लोग के जोर में ये pipeline बनाएंगे. This pipeline I created in my issue. If you guys get any issue, let me know. I will create the pipeline. I will check. I will check. I will again recreate. वो तो पूरा पूरा तो ये हो गया मेरा. I will Okay. again recreate it within 1 or 2 Yes. days and I Yeah, I will sure, see. sir. Sure, sir. Yeah, thank you. Thank you. So this is also done. Okay. Now, Prince asked this question. Uh, Collect take method in PySpark. He is not able to get this concept. Okay. Let me explain this concept. This is really very important concept to understand. So for that, let me first of all go into my Databricks. Let me open it. Okay, this cluster is getting created. Let's wait for it to get created. Meanwhile, let me open the notebooks.
Okay. Let the cluster get created and then you attach it. Excuse me, sir. I have Yes, please. I have one more question. Like how Uh, to delete a secret scope? how to delete a secret scope? Yeah, What is the need of deleting secret scope? because I have created two secret scope for the one keyboard. Like I have one keyboard That is and fine. I have created two. That is fine. That is fine. That is not an issue. So I was thinking that I wanted to delete this one, but No, you I'm not getting code. that is not needed actually. Okay, but if you want, let me search for this because this thing never comes in use. I was getting the code like on the command line interface. If you want to delete the secret scope. Okay. You try this code once. What is Okay, this is from CLI. on the Okay, on and the from data. CMD side command? Yeah. Yes, it's from CLI. From CMD you can delete, Okay. but from Databricks notebook you cannot delete. Although you don't need to think on that line, okay? You don't need to waste your time on that line because that is not actually needed. Okay. You can Actually, if because one secret scope is not working, you can create another secret scope. That's perfectly fine. There is not an issue. yes, sir, that was not working. My first secret scope was not working, so I have created second one. Second one was working. So I want to just delete the first one. That is fine. Leave that as it is. Okay. Okay. Leave that as it is. Yes, yes, actually, I was also trying to connect the directory with the SAS token. Like one directory is the ADLS Gen 2. I wanted to Mhm. connect with the SAS token. That was also not working for me. And when I was trying to connect the container, at that time Mhm. container was, I am able to connect the container, but for the directory, I'm not getting. No, so which SAS token did you use? Did you use the SAS token of container? The SAS token of directory? Because you see, SAS token is present at container level. Okay, you see, this is at a storage account level. Now, when you will click here, when you will go inside container, this is the container level, right? Here also SAS token is generated. Okay. When you go inside it, this is the directory level. You can also generate SAS token for directory level. So which SAS token you are Yes, using sir. to connect? I have So used directory level SAS token. you have used? Are you I sure? have made, yes, sir, I have to. I'm Okay, sure. so when you generated the SAS token, did you granted all the required permission? Like here you I can have see granted 4-5 permission like read, write. Just I was reading the one file. So I have list granted permission. permission of the read. L- List permission. Did you granted list permission? I will not remember List that I have this. granted list or not, but read, write, create, this type of delete. Okay. Yeah, this list is very much necessary. If you will not provide this list or operation, because for reading also, first of all the content of that directory needs to be listed, right? Getting the point. Or for deleting also, all the contents of that directory needs to be listed down. Getting the point. Only then it will be read or it will be deleted. Whatever operation you want to perform. So this list is very much necessary. Maybe I have missed this one. Or if or give directly the most powerful permission, this ownership, that you are the owner of that directory, you can perform any operation. Okay. Ownership or Okay. give permission of execute as well. Okay. Or give all the permission, that is I will. also fine. Okay. Okay, so I will Getting try. okay. Yeah, try this one.
Give all the permissions and then try. You might have missed any kind of permission. That's why it might be happening. Okay, my cluster is not starting. Okay, let me go another way. Let me open the community version. Yeah, I can open my Azure. Will that help? Mm. I want cluster also. That is fine. I have opened. I mean, this will Okay, work. okay, Okay. okay. So let it get started. Yeah, I just have a small query around. Mhm. Yeah, that's is it possible to take the import and the export of these pipelines? I've seen it is not possible in the video. Which pipeline? Databricks or And data factory? no, not Databricks, the data factory. Okay, okay. Yes, it is possible, but in some different way. Okay, let me tell you. A very good question you asked actually. This concept is used a lot in real time actually. Okay, let me show you. So this is open already. So this is my data factory. Okay. Suppose I want to make clone of this pipeline, PL mail alert new. Okay. So how can I clone? Can you think anyway? Yes, you can take it from there only clone option is there. Okay, clone option. This is one of the option. Okay. So where do you want to export it? I mean, where do you want to import it? Like maybe locally. Okay. So we have, when you will see here, this middle bracket symbol, this bracket. Okay. We have code for this pipeline. Okay. This is the code that is, I mean, actually we create the pipelines from UI, but those pipelines behind the scenes are converted into code. And this is that code. Okay. So what you need to do, you just need to copy this code, copy to clipboard. Okay. Copy this code. And when I will click on this, you see new pipeline. And I'm not using clone option right now. I've just copied the code and I will paste the code that pipeline here. Yes, yes, Yes. yes. You have showed this. You have showed it in the video. Okay. Like, You remember? yes, yes, I remember. And then rename the pipeline. Yes. Okay. Just a minute. Okay. Just 1 minute. Just 1 minute. That's fine. Just this pipeline and next to it. Okay. Suman, you see.
Yes. Okay, this pipeline came up here. Yes. Getting the point? But but one thing needs to be taken care of. Okay, so right now we are copying this pipeline in the same Azure Data Factory, right? Correct. So Correct. it took. But if you'll notice, if you will see this code, or if you will see here, like I have built some of the connections, right? Like I'm building connection with source, I'm building connection with sync, right? So what do you think when I will copy this code from this data factory? This data factory is what? This is ADF forum D4. ये कौन सा डेटा फैक्ट्री? ADF forum D4. तो आपको क्या लगता है अगर मैं इस कोड को आपके डेटा फैक्ट्री में ले जाऊं तो क्या ये पाइपलाइन में वर्क करेगा? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, it is not नहीं because there are also parameters, बहुत सारे Yes, yes. Connections. source sync, हाँ, connections. Connections are there. Service and data set will be changed. Exactly. So I have Yeah, data set will be explained this. So data set needs to be changed. So what are all those data sets? Like you see, we are also using logic app here. So in this resource group, this is the logic app URL. So when I will copy this code in your Azure Data Factory, this URL will not work. You will have to change this URL to your URL. Whatever is the URL of Right. logic app in your resource group. Getting the point? Correct. Similarly, we need to change all the other details like dataset name. Like here, the dataset name is delimited text 52. So whatever is the dataset name in your Azure Data Factory, you need to put the dataset name here. Put that dataset name here. Okay. You need to create that dataset in your ADF. आपको अपने ADF में एक नया डेटासेट बनाना पड़ेगा और उसके बाद उस डेटासेट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। और डेटासेट कैसे बनाएंगे? डेटा सेट बनाने के लिए मैंने बताया हुआ है, डेटा सेट आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप नया डेटा सेट बनाइए, पहले नया डेटा सेट बना लीजिए, फिर इस कोड को कॉपी अपने में आप खुद के अपने Azure डेटा फैक्ट्री में एक नया डेटा सेट बनाइए। डेटा सेट के अंदर हम लिंक सर्विसेज बनाते हैं, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, ये पूरा कोड जो है इसको कॉपी कर लीजिए। जैसे आप बोल रहे हो कि अरुण मुझे आपका ये वाला पाइपलाइन चाहिए, तो मैं आपको ये वाला कोड पूरा कॉपी करके आपको दे दूंगा। आप अपने में जाना, अपने डेटा फैक्ट्री में ये न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करना, ठीक है? आप यहाँ पे पेस्ट कर देना इसको इस तरीके से, ठीक है? पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बस वो पाइपलाइन का नेम चेंज होगा, पाइपलाइन 2 था, पाइपलाइन 2 था। और ये चेंज करने के बाद आप सब जगह बस डेटा सेट करना। एक तो ये लॉजिक ऐप का URL ये चेंज करना, आपके अपने रिसोर्स ग्रुप में जो भी लॉजिक ऐप का URL होगा, और जो डेटा सेट जो आपने बनाया, ओके, आप वो डेटा सेट का नाम बस यहाँ पे रिप्लेस कर देना। फिर ये पाइपलाइन परफेक्टली एग्जैक्टली सेम टू सेम रन करेगा आपके वाले में, आपके डेटा फैक्ट्री। Getting the point? Yes. But this is okay for but in practical scenario, like maybe I have thousands of pipelines, and somehow 400 got by any junior guys. They by mistake they have deleted it or it has been removed. वो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इसका। कोई बैकअप हाँ नहीं तो हाँ तो दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली इस जगह पे पाइपलाइन नहीं बना सकते हो। हम लोग डायरेक्ट डेटा फैक्ट्री बना रहे हैं, राइट? जब आप मेरे डिप्लॉयमेंट का वीडियो के पास जाओगे लास्ट में, तो मैंने इसको कनेक्ट किया है Azure DevOps से, और यहाँ पे डायरेक्ट आप पाइपलाइन नहीं बना पाओगे। ये मेन डेटा फैक्ट्री का पाइपलाइन है। आपको अगर पाइपलाइन बनाना है, जैसे हम लोग 5 डेवलपर्स हैं, मुझे पाइपलाइन बनाना है, तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ गिट कनेक्टेड रहेगा। हमने Azure DevOps को कनेक्ट किया है, ओके? उससे हम एक नया ब्रांच निकालेंगे और उस ब्रांच पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कोई चेंज नहीं, तो वो मिस्टेक हो ही नहीं सकता जो आप बोल रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? Yes. वहां तक गया नहीं मैंने। I haven't gone through that. जाओ करते हैं। तो वैसे भी सर हमें वो परमिशन भी नहीं देता है एडमिन इतना छोटे डेवलपर को। हाँ वो उस देते तरीके भी का। वो परमिशन मिलेगा ही नहीं आपको गलती कर ही नहीं सकते। हाँ। Correct. ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज Yeah. ब्लॉक्ड। आपको जब भी नया पाइपलाइन बनाना होगा, आपको यहाँ से एक नया ब्रांच पुल करना होगा और फिर आप वहाँ पाइपलाइन बनाओगे, और फिर जब इसको पब्लिश करोगे तब वो आता है ये डेटा फैक्ट्री में मर्ज करके पब्लिश करना पड़ता है। वो प्रोसेस बताया गया है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस में, आप आगे बढ़िए आपको पता चलेगा। Okay.
Yes. आप ये समझ गए ना क्लोन हाँ। कैसे होगा, कॉपी हाँ, कैसे क्लोन होगा करना एक डेटा फाइल। ये वीडियो मैंने देखा था एक्चुअली। आई जस्ट हाँ। एक है क्लोन का, लाइक देयर इज ऑप्शन ऑफ क्लोनिंग एंड देन अदर इज फ्रॉम द कोड। यू हैव टू जस्ट कॉपी द कोड हाँ। and you can create a new pipeline. Just change the pipeline name. Correct. राइट। Yeah. ओके, Thank you. Thank you. थैंक यू। ओके, तो ये डेटा आ गया है मेरा। मैं क्विकली क्या करता हूँ, एक पीयूष यू आर हियर राइट, सॉरी प्रिंस Yes, sir. यू आर हियर राइट। Yes. ये क्या क्या हो रहा है? Okay, I'm just uploading a file, sample file, that's all. I'm just uploading a sample file, that's all. I'm not doing anything. I just want a CSV file. That's what I'm trying to upload it. मुझे बस एक CSV फाइल चाहिए और मैं बस वही अपलोड कर रहा हूँ। एक CSV फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। प्रिंस आप देखना। प्रिंस आर यू हियर? Yes, sir. ओके, देखना मैं अभी रीड करूंगा उसको। और कलेक्ट और टेक ये दो डाउट है आपका, और मैं दोनों को अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा आपके सामने। Okay, this is the path. Let me use the read API and format, and in this format I'll put here CSV dot load spark dot read dot format dot options. What are the options? Tell me. Remember anyone? Header is equal to true and infer schema is equal to true. Good. Header true. What is the And use the of infer schema. schema? What is the use of infer schema? The data Pull type. the schema Correct to pull data the type. schema from the file. What will happen if you don't put infer schema is equal to true? The data type may be wrong. Data type. The data type may be wrong. Okay, nice. So what is that data type that comes by default? By default, String. it comes Very string. good. String. Correct. Very good. And what if we don't put header equal to true? What is the default header that comes there? That line, C1, the header C2, column name C0. comes in the first C2, line. yes. Column names. C0, C1, C2. Yes, sir. Column 1, Yes. column 2. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. So see, I have read this data and I am just using this show method to see the data. Okay. Now please your question. Okay. Collect and take. Okay. So do you know what does this collect method do? Do you remember? Yes, sir. Collect Action, method it is just action. it is, yes, sir, it is a kind of action. It convert this Ah. data frame in the RDD and it will just give the Very good. list in the RDD form. So this is data frame, right? This is higher level API. So if I will use this collect method,
this data frame will be converted into RDD, right? Am I right? Yes. Right? Yes, sir. Am I right? Okay. Yes. So you see, this got converted into RDD. This got converted into RDD, lower level API of Spark. Okay. Yes, sir. This scroll is not working perfectly. This got converted into RDD. Okay. Now, you see, I am seeing all the data which was present inside this data frame, right? All data is here, which was present inside this data frame. In this data frame, whatever records were there, all the records came here. सारे के सारे records जो कि इस data frame में थे, वो सारे के सारे records RDD में convert हो गए. Okay? जब हम collect method use कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ. When we are using collect method, then all the records are coming to the driver node. Getting the point? सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है ड्राइवर नोड में आ रहे हैं. तो अभी तो मेरा रिकॉर्ड्स बहुत कम है. अभी टोटल आई थिंक टोटल 78 रिकॉर्ड्स. एक बार काउंट करके देख लेते हैं. टोटल 78 रिकॉर्ड्स हैं. ओके. बट आप 77. 77. बट आप वो सिनेरियो सोचो. अभी तो 77 बहुत ही छोटा साइज है. आप वो सिनेरियो सोचो कि आपके पास टोटल सपोज दैट 1 टेराबाइट ऑफ डेटा है. ओके. और आपने यहाँ पे कलेक्ट मेथड यूज कर दिया. ओके. बट आपके आपका जो ड्राइवर नोड तो एक ही होता है. मैंने बताया है राइट. स्पार्क आर्किटेक्चर में ड्राइवर नोड एक ही होता है. Yes, sir. आपका जो ड्राइवर नोड है उसकी 8 GB मेमोरी है. ओके. 8 GB रैम है. Mhm. तो आप समझ रहे हो कि जब मैं कलेक्ट मेथड यूज करता हूँ तो मेरा सारा डेटा उठ के आता है कहाँ? ड्राइवर नोड पे. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Mm. गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब हम कलेक्ट मेथड यूज करेंगे, जब हमने df.collect यूज किया, तो ये डेटा फ्रेम जो है कन्वर्ट होता है RDD में, और सारा का सारा डेटा उठ के कहाँ आता है? ड्राइवर नोड पे. मतलब ये जो पूरा डेटा जो आपको दिख रहा है ये नीचे में RDD का जो डेटा है, ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा ड्राइवर नोड पे आएगा. ओके. बट ड्राइवर नोड की साइज क्या है? लिमिटेड है. 8 GB है सपोज दैट. अभी तो आपका रिकॉर्ड कम था, 77 रिकॉर्ड था, तो ये परफेक्टली चल गया. बट सपोज करो आपका 1 टेराबाइट साइज है उस डेटा फ्रेम का. ओके. आपने कलेक्ट मेथड यूज कर दिया और वो पूरा डेटा RDD में कन्वर्ट होके कहाँ आएगा? ड्राइवर नोड पे. तो क्या ये चलेगा? आपको लग रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. नहीं चलेगा. यहाँ पे ये क्या देगा? आउट ऑफ मेमोरी एरर. Out of me. Yes, ओके. sir. बोल रहे OOM, आउट ऑफ मेमोरी एरर. ओके. दिस इज द आउट ऑफ मेमोरी एरर. अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते हैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो होगा. ट्रांसफॉर्मेशन वो होगा. डीएफ रीड करते हैं. नहीं डीएफ रीड ट्रांसफॉर्मेशन. करते हैं. वो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. रीड ये करने के बाद कलेक्ट मेथड यूज करने से हुआ क्या? सारा डेटा आपका ड्राइवर नोड पे आ गया. बट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से आपका डेटा ड्राइवर नोड पे नहीं आता है, वो वर्कर नोड पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है. गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वर्कर ट्रांसफॉर्मेशन. नोड भी अगर उतना कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है, वर्कर नोड भी हाँ. 8 GB का अगर 4 वर्कर नोड है, 32 GB है, अगर उसके आगे अगर मुझे मेरा डेटा अगर 50 GB से ऊपर रहता है तो कैसे होगा फिर इसमें? नहीं तो होगा क्या? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सपोज दैट 4 वर्कर नोड है. ओके. 4 वर्कर नोड है. आपके पास क्या है? सपोज दैट 100 GB ऑफ डेटा और 4 वर्कर नोड है. तो सबसे पहले चारों वर्कर पे एक वर्कर नोड का रैम है 8 GB, तो 8 × 4 32, मतलब 32 GB डेटा तो एक साथ प्रोसेस होगा एक बैच में. जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो फिर पीछे से 32 GB आएगा. गेटिंग द पॉइंट? लाइक बैच प्रोसेसिंग होगा सर. हाँ, बैच काइंड ऑफ प्रोसेस होगा. समझे? वो डेटा डिवाइड हो जाएगा मल्टीपल पार्ट्स में, और एक वर्कर नोड का मेमोरी है 8 GB. ओके. तो आपका डेटा जो है जो 100 GB का है वो 8 GB में 4 पार्ट में डिवाइड होगा, और सबसे पहले वो प्रोसेस होकर उसका आउटपुट आएगा. फिर पीछे से आउटपुट आएगा. आउटपुट सर ड्राइवर नोड पे आएगा. हाँ, नहीं उस टाइम आउटपुट नहीं आएगा. वो फाइनल आउटपुट नहीं है. फाइनल आउटपुट तो तब आएगा ना जब आपका सारा का सारा जॉब
कंप्लीट हो जाएगा। यही तो मैंने बताया आपको जीएसटी करके, जॉब स्टेटस एंड टास्क। Yes, sir. Job. Yes, sir. Right. Hmm. तो वो मेन जॉब जो है मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक होता है, जब पूरा कंप्लीट होगा तब वो जॉब कंप्लीट होगा। गेटिंग द पॉइंट? जब पूरा डेटा प्रोसेस हो जाएगा तब जो है आपका आउटपुट जो है फाइनल ड्राइवर नोड पे आएगा। Yes, sir. गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. But यही सर टेक का था कि जब टेक करते हैं तो वो उस हाँ टाइम। बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम समझ गया। दिस आउट ऑफ मेमोरी यू अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now what happens with take? Okay, let me use, you see here I used df.collect. Now let me use df.take. Okay, df.take. Okay, when we use this take method, inside take we specify the number of records that we want to bring to driver node. जब हम take method को use करते हैं तो हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कितने रिकॉर्ड्स को अपने ड्राइवर नोड पे लाना चाहते हैं। लाइक सपोज मैं 30 रिकॉर्ड्स को लाना चाहता हूँ और मैंने df.take यूज किया। देखो यहाँ कलेक्ट और टेक दोनों आरडीडी में ही कन्वर्ट करता है डेटा फ्रेम को, बट ये जो कलेक्ट है ये पूरे के पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देगा। और टेक मेथड से हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो सर्किट आईडी 30 तक ही आरडीडी में कन्वर्ट हुआ है, मतलब सिर्फ 30 रिकॉर्ड्स ड्राइवर नोड में आए हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इससे क्या हुआ, वो आउट ऑफ मेमोरी एरर हमें कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने रिकॉर्ड्स को लिमिट कर दिया जो हम ड्राइवर नोड पे लाना चाहते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग? यस सर, बट जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर वो 100 GB का डेटा है तो कहीं ना कहीं एक डीएफ में स्टोर रहेगा ना, कहीं ना कहीं वो फिर मतलब जब हम उसको मतलब डीएफ कहीं ना नहीं कहीं वो रैम में स्टोर होगा, या फिर पूरा का पूरा कलेक्टिव वो कैसे मतलब कि आएगा फिर मुझे उस जैसे मुझे अब उसको एडीएलएस जेन 2 में ट्रांसफर करना है तो वो कैसे जाएगा फिर कलेक्टिव? वो कहीं ना कहीं एक जगह स्टोर रहेगा तो ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहे, फिर से पूछ रहे हो? रिपीट जैसे करो। कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और वो 50 GB डेटा है, 50 GB डेटा या 100 GB डेटा जो भी है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद कुछ कॉलम डिलीट या फिर कुछ भी करे तो वो 60 GB या 70 GB तक आया, तो उसको मुझे भेजना है एडीएलएस जेन 2 में। तो जब उसको भेजना है तो वो कहीं एक जगह कलेक्टिव रहेगा तो ही ना भेज पाएंगे। क्लस्टर का मेरा साइज उतना बड़ा नहीं है, तो उसको फिर ट्रांसफर कैसे करेंगे एडीएलएस जेन 2 में? नहीं तो वो पार्ट वाइज में होगा ना, वही तो मल्टीपल टास्क में ब्रेक हो रहा है ना आपका टास्क। गेटिंग द पॉइंट? आपका आपका पूरा जो जॉब है वो मल्टीपल टास्क में ब्रेक हो रहा है, राइट? मतलब वो कलेक्टिव कहीं एक जगह आएगा ही नहीं, वो बैच वाइज ही प्रोसेस हाँ, होगा और बैच वाइज भी बैच नहीं वाइज, वो हाँ एग्जैक्टली वहाँ जाएगा भी। एग्जैक्टली बैच वाइज ही होगा। ओके, एक साथ पूरा डेटा मेमोरी में लोड नहीं होगा। एक साथ पूरा डेटा मेमोरी में लोड होगा, इसका मतलब मान लो 1 पेटाबाइट डेटा है, तो आपको आपको ये जरूरी थोड़ी है कि आपका रैम का साइज 1 पेटाबाइट हो। तो फिर मतलब क्या रह गया मेरे पैरेलल प्रोसेसिंग का? गेटिंग द पॉइंट? अगर मुझे उतनी कैपेसिटी का कंप्यूटर ही चाहिए तो मुझे मतलब क्या रह गया पैरेलल प्रोसेसिंग का? कोई मतलब ही नहीं बना। ये पैरेलल प्रोसेसिंग तक ठीक था, ये बैच प्रोसेसिंग वाला इसी में थोड़ा इशू हो रहा था कि मतलब बैच वाइज जाएगा, इसलिए हो जाएगा। हाँ, बैच वाइज निकलेगा, मल्टीपल टास्क में ब्रेक होगा। एक एक साथ जैसे 4 पैरेलल टास्क चल रहे हैं, अब वो 4 पैरेलल टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा पीछे से और 4 टास्क आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेक और कलेक्ट? यस सर, एकदम क्लियर। ओके, एक और छोटा डाउट था सर। हाँ सर एक माउंट पॉइंट बनाना है, अगर वो दूसरे एडीएलएस जेन 2 और स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कर रहा है जो दूसरे सब्सक्रिप्शन में है, तो ये कर सकते हैं हम लोग? तो दूसरे सब्सक्रिप्शन में है और कर माउंट सकते पॉइंट हैं, मुझे अपनी हाँ, डेटाबेस पे बनाना है। कर सकते हैं। I think yes. Can I tell here? यस यस श्योर। You just change the path, mount point name. That there is path. If we change the path, then I think we can change we can to change the whole thing. It is something like that. आई थिंक सर सर्विस प्रिंसिपल जब हम लोग बनाते हैं तो वो मुझे किस एंड पे बनाना पड़ेगा? वो जिस एडीएलएस जेन 2 जहाँ है वहां बनाना पड़ेगा, या फिर डेटाब्रिक्स जहाँ है वहां बनाना पड़ेगा उस सब्सक्रिप्शन में? हाँ, अब जो आपका क्योंकि जो क्वेश्चन है, जो कंटेनर 1 में आपका
है अभी माउंट पॉइंट, तो कंटेनर 2 में आप कैसे करेंगे? इज दिस द क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, मुझे सब्सक्रिप्शन ही अलग है, वो मैं ये बोल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन मेरा अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, अच्छा, सब्सक्रिप्शन अलग है Is it- तुम्हारा? या योर सब्सक्रिप्शन हाँ इज जी, डिफरेंट। हाँ सर, ये बोल रहे हैं सर कि अगर सब्सक्रिप्शन डिफरेंस Okay. है तो बना सकते हैं, क्योंकि सर्विस प्रिंसिपल अगर, क्योंकि मुझे दूसरे के सब्सक्रिप्शन से, दूसरा सब्सक्रिप्शन से वहां से मुझे डेटा पुल करना है माउंट पॉइंट के थ्रू डेटा ब्रिक्स में। इज इट पॉसिबल? ओके, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन में बनाना है। जो सर्विस प्रिंसिपल बनाएंगे और उस सर्विस प्रिंसिपल को हम लोग वो अलाउ करते हैं Okay. ना वहाँ पे अपने आइडियल Okay. एजेंटों में अलाउ करते हैं वहाँ Okay, एक्सेस just पॉलिसी। okay. Wait. You have to create in different subscription, right? This is your question. ये सब जो डायरेक्टरी आईडी और सब एप्लीकेशन आईडी बन जाएगा, डालते हैं तो ये बन सब जाएगा। सर्विस प्रिंसिपल पे डालते हैं। हाँ, बन तो ये जाएगा, सर्विस क्योंकि आपके स्टोरेज अकाउंट को ये स्पेसिफाई कर रहा है। ओके, ये यूआरएल आपको स्टोरेज अकाउंट को पॉइंट करता है, और सर ये इसी यूआरएल, से बन जाता है कीबोर्ड से। हाँ, ये यूआरएल यूनिक है। स्टोरेज अकाउंट का नेम जो होता है आपका यूनिवर्सल होता है। आपने जिस नेम से स्टोरेज अकाउंट बना लिया वो स्टोरेज अकाउंट और कहीं कोई नहीं बना सकता, मतलब पूरे वर्ल्ड में। दैट इज यूनिक। प्रिंस, यस सर। ये यूनिक होता है। जो स्टोरेज अकाउंट का नेम हम लोग देते हैं वो यूनिक होता है। ओके, इस यूआरएल से आइडेंटिफाई करेगा कि हमें इस स्टोरेज अकाउंट पर कनेक्ट करना है। ओके, वो और तो जो आप ठीक है। जो आप सर्विस प्रिंसिपल बनाओगे वो आप सर्विस प्रिंसिपल इस जो जहाँ पे आपका स्टोरेज अकाउंट है उसके अंदर बनाना पड़ेगा सर्विस प्रिंसिपल, उसके उस हाँ। सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि वहां सर्विस प्रिंसिपल बना के इस स्टोरेज अकाउंट पे एक्सेस देना पड़ेगा उस सर्विस प्रिंसिपल को। और फिर मतलब सर्विस प्रिंसिपल को आप समझिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ओके, यस सर। तो इस कंटेनर का यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा जिसको हम यूज करेंगे इस कोड के अंदर, इस कंटेनर के अंदर घुसने के लिए। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। मेकिंग सेंस? यस सर। सर्विस प्रिंसिपल बनेगा दूसरे के सब्सक्रिप्शन एंड पे, और वहाँ पे उस स्टोरेज अकाउंट में हम उस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस देंगे, और उस एग्जैक्टली, सर्विस प्रिंसिपल का जो डायरेक्टरी आईडी है और ये उसको यहाँ, एप्लीकेशन हाँ, आईडी है उसमें उसको यहाँ पे वहाँ यूज सेपरेट करेंगे, जो भी है तो यहाँ पे यहाँ पे यूज ठीक। करेंगे। मेकिंग सेंस? क्लियर? यस सर। Okay. थैंक यू। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। लेकिन इज इट पॉसिबल लाइक 2 सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं एक ही माइक्रोसॉफ्ट एजूर में? एक सब्सक्रिप्शन लाइक किसी हम लोग को दूसरे कंपनी के पास, नहीं, तो मान लीजिए मेरा दूसरे एक कंपनी से लेना है मुझे डेटा। कंपनी है फॉरम डी, मुझे टीसीएस से डेटा लेना है, समझ रहे हो? तो मेरा सब्सक्रिप्शन अलग होगा, टीसीएस का सब्सक्रिप्शन अलग होगा। गेटिंग द? हाँ, तो अच्छा मैं उसके डेटा लेक से डेटा कैसे पुल करूँ अपने पास? अच्छा अच्छा अच्छा, स्टोरेज अकाउंट का वो यूनिक होता है एक्चुअली हाँ, स्टोरेज ये अकाउंट। यूनिक नेम स्पेस होता है। हाँ, समझ ये गया। आप देखेंगे कि को अगर कैन बी और सर कैन बी सर आल्सो अगर ऐसा पॉसिबल हो, फ्रॉम द SaaS टोकन? क्या बोले? Can it be possible सर from the अगर SaaS token also? कैन यू कम अगेन, योर SaaS वॉइस token. ब्रो? SaaS token? Can it? Yes, sir. Can it possible from the SaaS token also? Yes, from SaaS token also it is possible. I told you, right, that this is the unique identifier for every data lake. तो SaaS token आप डेटा लेक का जनरेट करो और उसका जो कोड मैंने बताया वो उस कोड को यूज करो, वहां SaaS token पास करो, कनेक्ट हो जाएगा। सर ऐसा हो सकता है Yes. एक सब्सक्रिप्शन में मेरे में सारी सर्विसेज हैं। मान लीजिए मैंने पहले किसी से सब्सक्रिप्शन में सर्विसेज बनवाई है किसी क्लाइंट से, उन्होंने अपने अपने एनवायरनमेंट पे बना दी। अब मेरे को वो सारी सर्विसेज सेम सब कुछ अपना एक वो बनाना है, अजोर का सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें लेनी है। हो तो सकता है सेम टू सेम इस तरीके से हो जाएगा। टेराफॉर्म यूज करना पड़ेगा। टेराफॉर्म
तो सर डेवऑप्स के ये लिए यूज डेटा करते हैं? हाँ, ये डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, डेवऑप्स टीम, ये काम डेवऑप्स टीम करेगी, टेराफॉर्म का तो यूज करके कर टेराफॉर्म, सकते। ओके सर। ये डेटा इंजीनियरिंग का रोल नहीं है, ये डेवऑप्स टीम करेगी, ये डेवऑप्स टीम यूज करते हाँ हैं। सर। डेवऑप्स टीम में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सर मेरा ना आगे चल के ये सिनेरियो आने वाला है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो केपीएमजी के एनवायरनमेंट में है पूरा, और हम वो पूरा एनवायरनमेंट केपीएमजी से अब लुमिनस के एनवायरनमेंट में लेके आएंगे। ओके, हाँ कोई नहीं, हम जो है टेराफॉर्म का यूज करके ऑटोमेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग। ठीक है, समझ गया, गेटिंग द पॉइंट। ओके सर, ओके। तो जो आपके क्लाइंट ने बनाया होगा वो भी कोई टेराफॉर्म स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो वही टेराफॉर्म स्क्रिप्ट आपको भी यूज करना है, तो सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास भी सब कुछ ओजियोर की है। सर्विसेज प्रोविजन हो जाएंगे सेम टू सेम। ओके, तो सर ये पूरा कितने कितने मिनिमम टाइम में लगेगा हमारा, पूरा लेना पड़ेगा तो? इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आप डेवऑप्स टीम से बात करेंगे इसके लिए। ठीक है, ये हमारा काम ठीक नहीं है है, सर, डेटा ठीक। इंजीनियर्स का काम नहीं है। ओके, ये टेराफॉर्म से ठीक है होता सर, है। ठीक है। ठीक है, ये टेराफॉर्म से पॉसिबल है। ओके सर। ओके, सर मेरा बस सर लास्ट डाउट सर वही है सर, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस वाला ओवरव्यू सर, एक बार हाँ, सर आप मेरे को थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए, क्योंकि सर ये जरूरत पड़ता रहता है। राइट राइट राइट। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? ओके, इंफ्रा। ओके ओके, अब डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। ओके, देखो, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बहुत जगह लोग अलग अलग यूज करते हैं। ओके, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट एवरीवेयर। ओके, जो हमने डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है वो हमने फॉलो किया है एजोर डेवऑप्स का यूज करके। ओके, बहुत जगह डॉकर क्यूबरनेटीज यूज होता है। ओके, आप लोग जो है, हमने जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कवर किया है वो हमने कवर किया है एजोर डेवऑप्स का यूज करके। ओके, और डिप्लॉयमेंट के अंदर यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड CI/CD। ओके, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ओके, वन CI पाइपलाइन एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का पाइपलाइन होगा, एंड 2 CD पाइपलाइन, 2 CD कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का पाइपलाइन होगा। ओके, इसको मैं कॉपी करके थोड़ा सा नीचे लाता हूं, और एक CI का पाइपलाइन होगा और 2 CD का पाइपलाइन होगा। CD मतलब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और CI मतलब कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ओके, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ओके, 2 CD पाइपलाइन क्यों, अभी बताता हूं मैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट क्या होता है। 2 CD पाइपलाइन क्यों? क्योंकि ऐसा, सपोज दैट वी हैव 3 environments, one is development, another one is UAT, and the third one is production. ओके, ये 3 environment है मेरे पास। ये डेव environment ऐसा environment है जहां की हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। here we do the development. ओके, here we do the development, यहाँ पे हम डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद, ओके, जैसे ही मेरा डेव एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट होता है, ओके, इसके बाद हम CI पाइपलाइन को रन करते हैं। ओके, CI पाइपलाइन को रन करते हैं। CI पाइपलाइन क्या करता है, इट क्रिएट्स बिल्ड, ये बिल्ड क्रिएट करता है, मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ओके, इट क्रिएट्स बिल्ड, मतलब जो भी आर्टिफैक्ट्स है, मतलब जो भी चीज को डिप्लॉय करना है वो एक फोल्डर में आ जाता है, एक जगह आ जाता है। गेटिंग द पॉइंट, जो भी चीज को डिप्लॉय करना है वो एक जगह आकर एक फोल्डर में स्टोर हो जाता है। ओके,
अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहो तो बिल्ड का क्या मतलब है, तो बिल्ड का सीधा सा मतलब है कि जैसे ही हम सीआई पाइपलाइन चलाएंगे, जो भी चीजें हमने डेव इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट किया, जो भी पाइपलाइन बनाया, उसका बिल्ड बन जाता है। मतलब जो भी चीज डिप्लॉय करना है वो एक फोल्डर में आकर रैप हो जाता है। ओके, बिल्ड बनने के बाद यहां से हम चलाएंगे सीडी पाइपलाइन। अब बिल्ड बन गया, सीआई पाइपलाइन चलाने के बाद क्या हुआ, बिल्ड बन गया। अब ये बिल्ड जो बनता है वही डिप्लॉय होता है यूएटी और प्रोडक्शन पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेव पे डेवलपमेंट किए, यहाँ सारा डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट कर लिया, टेस्टिंग पास हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, सीआई पाइपलाइन चलाएंगे, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन। ये सीआई पाइपलाइन क्या करता है, ये बिल्ड को क्रिएट करता है। मतलब जो भी चीज हमें डिप्लॉय करना है, हमने बहुत सारे कोड लिखे, राइट। अब जो भी डिप्लॉय करना है उसको एक फोल्डर में रैप कर देते हैं, मतलब सबको एक जगह लेके आकर बांध देते हैं कि ये चीज मुझे ऊपर वाले इन्वायरमेंट में लेके जाना है। ओके, और ऊपर वाला इन्वायरमेंट क्या है, ये यूआईटी और प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर फिर सीआई पाइपलाइन सीआई पाइपलाइन चलने के बाद बिल्ड बना, मतलब सारा कोड जो है एक फोल्डर में आ गया। अब यहाँ पे हम रन करेंगे सीडी पाइपलाइन, मतलब कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पे हम रन करेंगे सीडी पाइपलाइन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। और सीडी पाइपलाइन जैसे ही रन करेंगे वो मेरा कोड जो है यूएटी पे चला जाएगा। यूएटी पे जाने के बाद फिर यहाँ टेस्टिंग करेंगे, सब सही चल रहा है तो फिर यहाँ पे सीडी पाइपलाइन रन करेंगे। ओके, यहाँ पे फिर से हम सीडी पाइपलाइन रन करेंगे और रन करते हैं, ये कोड मेरा उठकर चला गया कहाँ, प्रोडक्शन पे। तो देखो, एक सीआई पाइपलाइन लगा, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट किए, सीआई पाइपलाइन यूज करके उसको बिल्ड कर दिए उस पाइपलाइन को। फिर एक बार सीडी पाइपलाइन चलाए तो मेरा कोड यूएटी पे चला गया डेवलपमेंट से। यूएटी पे टेस्टिंग पास हुआ, पाइपलाइन सही चल रहा है, तो फिर से एक बार सीडी पाइपलाइन चलाएंगे और मेरा कोड उठकर प्रोडक्शन पे चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? वही, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। मेकिंग सर, सेंस? ये यूएटी हम सर वैसे बीच में क्यों ले रहे हैं? बीच में मतलब कहाँ लेना चाहते हो इसको? ये है यूनिट जैसे सर- एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ, बोलो बोलो। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि सर जी मैंने ना पहले मतलब कि ऐसा कुछ पढ़ा है वैसे CI/CD का। हाँ, ओके, but पर्पस ये में वाला बता रहा ये हूँ। वाला हाँ, Purpose ये में टर्म बता मैंने पहली बार सुना है। ओके, टेल मी वन थिंग, ये प्रोडक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया, ये क्लाइंट साइड या किसी में लास्ट एंड पे Production जिसको हमें मतलब- डिलीवर करना है। नहीं, मतलब असली में सब चीज चलेगा, सब चीज सही चलेगा, कोई मिस्टेक नहीं। हाँ, ओके, okay. ये डेव एनवायरनमेंट क्या है? जिसमें सर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कोड्स या कुछ लिखेंगे, हाँ, ओके। पाइपलाइन बनाएंगे। और ये यूएटी जो होता है, ये प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने से पहले, उससे पहले का एनवायरनमेंट होता है। इस यूएटी में सब कुछ प्रोडक्शन जैसा होता है, मतलब प्रोडक्शन के कॉपी, क्लोन, प्रोडक्शन के जैसा एकदम सेम टू सेम, डिट्टो, विदाउट एनी चेंज एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे हम कोड को डेवलप करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सारा टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर सब सही चलता है तब हम समझते हैं कि ये जो है प्रोडक्शन पे भी परफेक्टली रन करेगा। गेटिंग द पॉइंट? मतलब सर जब प्रोडक्शन पे आने से पहले भी हम एक अपने लेवल पे टेस्टिंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अब कार रिलीज हो रही है, ठीक है, मारुति ने कार बनाया, चाहे टाटा ने कार बनाया, ठीक है, ये पब्लिक में आने से पहले, क्या इसकी टेस्टिंग नहीं होगी क्या? गेटिंग द पॉइंट? इसकी क्रैश टेस्टिंग करते हैं, जो एनकैप रेटिंग वगैरह आप लोग सुनते हो, वो कैसे आता है? जो कार जो बन गया तो उसकी टेस्टिंग करते हैं सारे निगेटिव कंडीशन में, कि अगर ऐसा हो जाए, अगर गाड़ी को कोई आगे से ठोक दे तब क्या होगा, गाड़ी को कोई साइड से ठोके तब क्या होगा। मतलब हर टेस्टिंग, हर सारे सिनेरियो में पास होना चाहिए। जो टाटा कार है वो पब्लिक में जाने से पहले, उससे पहले एक टेस्टिंग होगी, क्रैश टेस्टिंग, और सारे टेस्टिंग में वो कार पब्लिक में जाने से पहले पास हो जाना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद ही उसको पब्लिक में रिलीज करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। ओके, अगर टेस्टिंग नहीं करेंगे, सारा नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करेंगे तो रिस्क है। अगर हम टाटा अपनी कार को डायरेक्ट पब्लिक में लॉन्च कर दे तो वो तो एक रिस्क है, राइट? कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता सर है। वो सर वो भी नहीं कह पाएंगे हमने, मतलब कि हमने ये फीचर दे रहे हैं, इतनी स्पीड पे एक्सीडेंट हुआ तो ये बंदे सेफ नहीं है। एग्जैक्टली पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो उसी तरीके से ये यूएटी जो है प्रोड के जैसा ही सेम टू सेम एनवायरनमेंट होता है। ओके, और इस पे चला के देखते हैं कि मेरा पाइपलाइन जो है एकदम परफेक्टली फाइन रन कर रहा है कि नहीं।
Getting the point? Understanding? Yes, sir. Clear? Making sense? Yes, sir. ओके, तो ये जो है Yeah. एक ओवरऑल प्रोसेस है, एक सीआई पाइपलाइन, 2 सीडी पाइपलाइन, बट लेट मी रीएम्फसाइज कि डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जगह जगह चेंज हो सकता है। मैंने जो आपको डिप्लॉयमेंट प्रोसेस बताया है वो बताया है जो डेवऑप्स को यूज करके, ओके। कहीं पे क्यूबरनेटिस वगैरह भी लोग यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, Sir, Okay. Kubernetes and Jenkins. हाँ वो चेंज हो सकता है, दैट Yes, इज sir, नॉट ए code बिग डील, commit, हाँ वो तो चेंज मैंने हो देखा सकता है। तो हर जगह अपना अलग प्रोसेस सेटअप है, तो आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है डिप्लॉयमेंट के लिए, ओके। वो डेवऑप्स टीम बनाती है ये वाला पाइपलाइन, और डेटा इंजीनियर्स को इस पाइपलाइन को जस्ट यूज करना होता है। तो आपके लिए मैंने ये जो डेवऑप्स यूज करके बनाया है, आपको ये याद रखना है और आपको इंटरव्यू में यही बोलना है कि हमें जो डेवऑप्स डिप्लॉयमेंट करना जी सर, मेरे को अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा था मेरे से इंटरव्यू है। अच्छा, में। पूछा था क्या? हाँ सर, क्योंकि सर इधर भी हमारे पास प्रोड इन्वायरमेंट है, डेव इन्वायरमेंट नहीं है, और पिछली वाली में भी था ऐसा ही। अच्छा, डायरेक्ट प्रोडक्शन पे करते हो आप लोग? हाँ सर, मैं सर दोनों कंपनियों में यही रहा है। तो कहीं कहीं पे सर मेरे सिस्टम, को सर वो क्वेश्चन पूछ रहा, मेरे पास जवाब ही नहीं था। कहीं कहीं पे सिस्टम ज्यादा मैच्योर नहीं होता है, तो एक ही इन्वायरमेंट पे भी काम करते हैं लोग, वहाँ डिप्लॉयमेंट का कोई झमेला नहीं होता है। मतलब कहीं पे प्रोसेस ज्यादा अच्छा सेट नहीं होता है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, तो एक ही इन्वायरमेंट पे लोग काम करते हैं, ओके। बाकी सर सब कुछ मैंने सब सही जवाब दिया था, इसी क्वेश्चन में फंसा था। अच्छा, और कहाँ मेरा दे तो रहे थे इंटरव्यू? नेगेटिव सर असेंचर में। ओ, उसी की वजह से सर एक ही क्वेश्चन में सर उन्होंने पता नहीं नेगेटिव फीडबैक दे दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, बहुत मौके आएंगे अभी, अब डेटा इंजीनियर हो, टेंशन मत लो। नहीं, कॉल तो सर आ रहे हैं, पर सर वही है ना सर, 3 मंथ नहीं, तक कोई नहीं रोक रहा है अभी। आप But इधर आप मान लो इधर, सॉरी, आप इधर मान लो यूएटी में कुछ बग आया है, फिर तो फिर से हम उस पर चले जाएंगे। यूटी में पे। बग आया तो फिर से वापस डेप पे जाएंगे, और फिर से फिर डबल वापस उसको फिर से सही डेवलपमेंट। करेंगे। ओके, हाँ, फिर से डेप पे जाएंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर से सीआई चलेगा, सीआई पाइपलाइन चलेगा, बिल्ड बनेगा, उसके बाद सीडी पाइपलाइन चल के फिर से यूएटी पे जाएगा, फिर से टेस्टिंग। अच्छा अच्छा, बिल्ड एक ही टाइम बनता है, करेक्ट? नहीं 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 नहीं, एक ही टाइम नहीं। अगर मान लीजिए यूएटी पे बग आ गया, तो इसका फिर मतलब इसके इस बाद बिल्ड बिल्ड नहीं में बनता है नहीं नहीं, इसके बाद इसका यूएटी के मतलब है कि बाद? हाँ नहीं, उसके बाद नहीं बनेगा, यही बिल्ड डिप्लॉय होगा, अच्छा, यही बिल्ड डिप्लॉय हो जाएगा प्रोडक्शन पे। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि यही बिल्ड तो यूएटी पे आया है, अगर यूएटी पे टेस्टिंग सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये बिल्ड सही है, तो फिर से ये बिल्ड फिर से ये प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय हो जाएगा। हाँ हाँ, तो सर ये डेवऑप्स वाले, ये टेराफॉर्म आना बहुत जरूरी है, डेवऑप्स वाले, तभी सर डेवऑप्स वाले बहुत बोलते हैं टेराफॉर्म टेराफॉर्म। हाँ, ये उनके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं है जरूरी। हाँ सर, मैं समझ गया। हमारे लिए काम का नहीं है। ओके सुमन, क्लियर? हाँ हाँ, समझ गया। ओके, एवरी फेल्ड इंटरव्यू इज अ मॉक इंटरव्यू, ये आपको याद रखना है, कभी भी हताश नहीं होना है अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ऐसा होगा 8-10 इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा, ओके, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट एवरी फेल्ड इंटरव्यू इज अ मॉक इंटरव्यू। बस एक ही थंब रूल याद रखना है कि अगले इंटरव्यू में जाने से पहले जो पिछले इंटरव्यू में जो आंसर गलत किए या फिर आंसर नहीं दे पाए, उसको तैयार कर लेना है, ठीक है? यही थंब रूल है, ठीक है? कभी भी हताश नहीं होना, ये सब चलता रहता है जीवन में। ठीक है। अब सर आदत पड़ गई है इसकी। आदत ही लगाना है, ये सर इस लाइन में मेरा भी हम सर लोग हैं, ये आदत ही होनी सर चाहिए। बहुत दिन बाद मेरा एक इंटरव्यू क्लियर हुआ था, कम से कम 1-1.5-2 साल बाद। अब सर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, मोस्टली मेरे को आ जाते हैं इंटरव्यूअर। अब क्लियर होगा, 1-1.5 महीने रुको, उसके बाद क्लियर होगा, पढ़ा रहे हैं इधर तुम एक लोग। आपने मेंशन किया है अरुण, हाँ, like one CI pipeline, one CI pipeline and 2 CD pipeline. Why? राइट, Or what is the reason? अब वही मैंने बोला आपको। अच्छा देखिए, एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है?
पहले डेव इन्वायरमेंट है, ओके, डेव है, ऐसे फिर से लिखते हैं यहाँ पे, डेव है, यूएटी है, प्रोड है, ये क्लियर। प्रोडक्शन। हाँ। यहाँ पे क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, राइट, यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। अब डेव से यहाँ डेवलपमेंट हो गया, अब डेव से पाइपलाइन को यूएटी में जाने से पहले, ओके, हम क्या करेंगे सोचिए, उसको बिल्ड करना पड़ेगा, राइट, गेटिंग द पॉइंट। करेक्ट। बिल्ड समझ रहे हैं, हाँ। ओके, मतलब सारे जो भी आप नॉर्मल लैंग्वेज जैसे समझिए कि जो भी चीज हमने डेवलप किया उसको एक फोल्डर में रैप करते हैं, एक फोल्डर में लेके आते हैं, ठीक है, एक साथ लेके आते हैं। तो बिल्ड बनाने के लिए हमें चलाना पड़ेगा सीआई पाइपलाइन, गेटिंग द पॉइंट। ओके ओके ओके। समझ गए बात को। बिल्ड के लिए। हाँ, बिल्ड बनाने के लिए। अब बिल्ड बन गया, बिल्ड बना है अभी, लेकिन अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है, अभी यूएटी पे ले जाना है। अब ये बिल्ड बन गया, यही बिल्ड डिप्लॉय होता है यूएटी और प्रोडक्शन पे। तो डिप्लॉय होने के लिए क्या चलाएंगे बताइए, सोचिए। पाइपलाइन। सीडी पाइपलाइन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। हाँ, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन। यूएटी पे आ गया, टेस्टिंग पास हो गया, अब उसी पाइपलाइन को प्रोड पे लेके जाना है, तो क्या चलाएंगे बताइए। सिर्फ फिर सीडी पाइपलाइन, दो फिर से सीडी सीडी, पाइपलाइन हो गई। फिर से सीडी चलेगा, अच्छा। ओके। हाँ। ये सीडी पाइपलाइन का काम क्या है, ये सीडी पाइपलाइन का काम है, ये जो बिल्ड बना है इस बिल्ड को यूएटी पे लेके जाना, और फिर से ये जो बिल्ड बना है इस बिल्ड को प्रोडक्शन पे लेके जाना। गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है। यस। नाउ क्लियर। यस। ओके, मतलब या दो इसीलिए दो सीडी हाँ, पाइपलाइन है इधर। हाँ, एक यूएटी पे ले जाने के लिए, एक प्रोडक्शन पे ले जाने। हाँ। बहुत जगह मतलब प्रोसेस अलग होता और भी एक प्री प्रोडक्शन भी एनवायरनमेंट हो सकता है, हम देखा है। तो हाँ, फिर वो वाला नहीं, ये यूएटी ही प्री प्रोडक्शन है। बहुत जगह एक और होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट होता है, यूएटी के पहले एक और टेस्ट होता है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, बस आप 3 इज स्टैंडर्ड, आपको 3 ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है। 3 स्टैंडर्ड है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कहीं कहीं पे 4 इन्वायरमेंट भी होते हैं, और कहीं पे एक ही इन्वायरमेंट होता है। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो आप सीख लीजिएगा, बट क्या होता है ये जानना जरूरी है। आपको बोलना है कि हमारे यहाँ 3 इन्वायरमेंट है, दैट्स ऑल। ओके ओके सर इसका सर एक डेमो दे दीजिए सर, उसमें सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद देख पा रहा हूँ मैं हमारी वीडियो। ओके, डिप्लॉय करके दिखना है। हाँ सर, क्योंकि ना वो पूरा इंग्लिश में सर बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहा था सर। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है सर, मेरे साथ सर चीजें रहता है, इंग्लिश में ज्यादा होता है ना सर, मेरे को नींद आने लग जाती है लेक्चरों में। हाँ कोई सर, नहीं, इस वजह से सर मैं फिर ठीक है, लेट मी नोट इट डाउन। ओके, अब अभी तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पूरा सेटअप करना पड़ेगा पूरा डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। सर ये मैं तो तैयार सर मैं करता ना हूँ, आपको देता इसी हूँ। चक्कर में सर मैंने ना जितने भी जो अपने लेक्चर्स लेता हूँ, मतलब सबसे पहले यही पूछता हूँ। तो मेरे जितना समझ में आता है उसके बाद तो मैं धीरे धीरे करके उसको अपना वो अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके धीरे धीरे बता सकता हूँ हाँ, इंटरव्यू नहीं नहीं, को। राइट राइट राइट, ठीक है। मैं इसको जो है मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं इसको तैयार करके आपको देता हूँ, ओके। नहीं तो सर अपना हो सके तो सर उसी वीडियो को सर, मतलब कि अगर वो सर पूरा हमारे इंग्लिश वाला है, उसमें पूरा इंग्लिश में है, हो सके तो उसी में सर आप चेंज कर दोगे ना, मैं तो वहीं से देख लूंगा, वो भी अच्छा कोई अच्छा, वो नहीं है। हाँ चलो कोई नहीं, मैं देता हूँ आपको, सर। ठीक है। सो दिस वाज द होल थिंग। एनी अदर डाउट, एनीवन हैज कुछ और डाउट आ रहा है दिमाग में किसी के सर एक प्रिपेयर सर करते हुए। हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन और मेरा, मतलब कि ऐसे ही आप बता दीजिए, वो मैं ट्राई कर लूंगा सर। हाँ ऐसे मान लीजिए 4 मेरे सर्वर है, हम्म, चारों सर्वरों पे अलग अलग वो टेबल्स बनी हुई है चारों सर्वरों पे, और मेरे को दूसरी साइड भी जो मतलब कि मेरे को
सिंक की साइड भी 4 सर्वर है, अलग अलग पाइपलाइन बनी हुई है, और मेरे को ना चारों अलग अलग उससे 4 अलग अलग उसमें भेजने हैं। तो इस तरीके से सर कितनी पाइपलाइन बनेंगी? सर चार ऐसे समझ चार सर अलग आपको सर्वर है ना? यस सर। 4 अलग सर्वर है तुम्हारे पास, मतलब डेटाबेस है सोर्स के। सर्वर हाँ 1, सर्वर 2, यू आर सेइंग दिस, सर्वर 3, यस सर। सर्वर 4। ओके, यस सर। ये सोर्स है। और उसी तरीके से सिंक भी आपके पास 4 है, राइट? यस सर। 4 पे लेके जाना है आपको। दिस इज योर प्रॉब्लम, राइट? यस सर। ये भी 4 है, राइट? तो ये 4 से ये 4 पे लेके जाना है। आप चाहो तो 4 सेपरेट पाइपलाइन भी बना सकते हो, और आप चाहो तो एक सिंगल पाइपलाइन में भी ये काम कर सकते और सर चारों पे सर मान लीजिए चारों में अलग अलग मतलब कि सोर्स में जो अलग अलग सर्वर पे अलग अलग हो। तरीके की टेबल है, और वो मैं हाँ, टेबल मेरे को नहीं नहीं, वो एक करनी आपको है। क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। आपका लिंक्स आप 4 अलग अलग बनाओगे तो वो इजीली हो जाएगा, लेकिन 4 पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। ओके, आइदर यू क्रिएट 4 पाइपलाइंस, ओके, और यू क्रिएट 1 पाइपलाइन। जो ये 1 पाइपलाइन क्रिएट होगा, ये कैसे क्रिएट होगा? एक CSV फाइल में आपको सोर्स एंड सिंक के कनेक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर रखना पड़ेगा। ओके, सोर्स सिंक ठीक है। सोर्स और सिंक का कनेक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर रखना पड़ेगा। जब आप पाइपलाइन बनाओगे, जब लिंक सर्विस बनाओगे, वो लिंक सर्विस डायनेमिक करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, नीड्स टू बी डायनेमिक। लिंक सर्विस को आपको डायनेमिक करना पड़ेगा। जो ये एक्सेल फाइल में स्टोर्ड इन CSV, जो आप CSV फाइल में सोर्स और सिंक का कनेक्शन स्टोर करोगे, उसमें से आप रीड करोगे कनेक्शन के इंफॉर्मेशन को, और अपने लिंक सर्विस में डायनेमिकली रीड करोगे। तो एक बार वो लिंक सर्विस इस सोर्स को कनेक्ट करेगा और इस सिंक को कनेक्ट करेगा, और डेटा को यहाँ से यहाँ कॉपी कर देगा। फिर जब दूसरा लूप चलेगा तो उसके बाद इसको कनेक्ट करेगा इस सोर्स, और इसको कनेक्ट करेगा इस सिंक, और डेटा को कॉपी कर देगा यहाँ पे। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है सर। फिर जब तीसरा मतलब लूप सर चलेगा तो उस केस में सोर्स सिंक ये हो जाएगा, और चौथे में ये हो जाएगा। जो हमने सर मेटा डेटा एक्टिविटी करके यूज की थी, उस तरीके से हमने हाँ, डायनेमिक बना देंगे, ऐसा उसमें exactly. लूप में फॉर ईच करके for- यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच। और रीच कर देंगे। एग्जैक्टली। हाँ दोनों कर देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कनेक्शन इंफॉर्मेशन एक CSV फाइल में रखना पड़ेगा। ओके, और जो लिंक सर्विस बना रहे हो आप, लिंक सर्विस को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। मतलब जो वो URL रीड करे इस सर्वर का, उसका URL का इंफॉर्मेशन इस CSV फाइल में होना चाहिए। तो एक बार URL को रीड करेगा, फिर उसके पासवर्ड को रीड करेगा, और सोर्स से कनेक्शन बनाएगा। उसी तरीके से इसी फाइल में से सिंक के भी कनेक्शन इंफॉर्मेशन को पिक करेगा, और सिंक का भी URL और पासवर्ड पिक करेगा, और सिंक के साथ भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, और फिर वो डेटा कॉपी कर देगा। फिर जब दूसरा लूप चलेगा तो फिर इसका कनेक्शन डिटेल पिक करेगा सोर्स साइड से, और इसका कनेक्शन डिटेल पिक करेगा सिंक साइड से, और डायनेमिकली वो नया लिंक सर्विस बना लेगा। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग? ठीक है सर। समझ रहे हो? ठीक है सर। ओके, जो भी आपको आसान लगे आप प्रोसेस ले सकते सर एक और कॉन्सेप्ट सर मेरी समझ नहीं आता है। जैसे कि सर हम नॉर्मल डेटाबेस में हम ADF से पुश करते हैं, तो सर नॉर्मल चला जाता है। जब मैं डेटा वेयर हाउस सिनेप्स में करता हूँ पुश, ADF से कॉपी करता हूँ, तो सर वहाँ पे सर एक वो चेक करने की बोलता है, डेटा स्टेजिंग, उसको ऑन करने की बोलता है। वहाँ पे एक लिंक सर्विस देनी पड़ती है ब्लॉक की। तो सर वो कैसे जरूरी होता है? नहीं, दिखाओगे तब समझ पाएंगे। दिखाना है एक बार, ठीक है सर। या फिर सर मैं फोटो आपको भेजना, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना, तब समझ पाएंगे। ओके, ठीक है सर। ओके। Thank you, और sir. कोई डाउट? और कोई डाउट? थैंक यू। और कोई डाउट आ रहा है किसी का माइंड में? No more doubts. Only the thing Okay. is good news मिला कल। एक टीम का एक अच्छा सा ये हो गया उसको क्या हो गया? प्लेसमेंट। अरे वाह, That is good. That is good. शुभम। सर वैसे सर मिनिमम सर अगर सर 3 ईयर
एक्सपीरियंस में हो तो हमें सर कितना कितना हम कंपनी से वो कर सकते हैं वैसे 10 आराम LPA से, तक जा सकते हैं? 10 आराम से ले सकते हो इजिली, 10 उससे ऊपर भी जा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू नेगोशिएट। ओके। नहीं सर 10 तो सर अभी है। हाँ तो आराम से 17-18 भी पहुंच सकते हो, इंटरव्यू सर दो। अब मतलब अब 10 से अगर मैं सर जंप करूं तो 17-18 मांगू तो उनको हाँ कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 17-18 भी जा सकते हो। ठीक है सर। वही इट रियली डिपेंड्स कि आपका प्रीवियस सीटीसी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। और कैसे आप काउंटर ऑफर लेते हो, एक ऑफर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, नोटिस पीरियड के अंदर, ठीक है। लोग 8-8 लाख से 28-28 लाख पे गए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ काउंटर सर ऑफर के कारण। सर मेरा भी सर ये ऐसा ही हुआ है सर। मेरा सर पहले 1.8 था। हाँ, अभी सर धीरे धीरे करके मतलब उसमें मैंने 2 काउंट मतलब एक 6 LPA का लगा था, फिर उसके बाद मैंने तुरंत मतलब ये 5 का लगा था, फिर 6 का मैंने, फिर ये 9 का LPA का ज्वाइन किया था। वाह, नाइस नाइस, तो अच्छा स्कोप है। हाँ सुमन, तो मैं कल लेके आऊंगा उनको, शुभम को, ठीक है। और उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इनसाइट आउट करके, बैंगलोर में कंपनी है, ओके। और वो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, उनका सिविल बैकग्राउंड था। तो मैं लेकर आऊंगा और he will be sharing his journey, that how he prepared, okay. He used to come very less in the classes. He was totally mostly dependent on the recording sessions actually. He used to say that in recordings he covers the things in fast manner, so it was his personal tendency. He preferred to watch the recordings. I will bring him Okay. tomorrow, okay, and you guys, for you guys to interact, okay, and you guys can ask any question, any doubts that is coming in your mind. He will be sharing his preparation strategy to all of you. Just see if you can, if you guys can learn anything from him. Yes. Yes sir. And one I more think sir request, अपना like your Spark classes, Yes, PySpark classes, those are right, right. like, no, it is good. I mean, but थोड़ा और भी हो सकता है क्या? सर कहाँ, प्रोजेक्ट, सर इसमें कहाँ, प्रोजेक्ट हो रहा है सर, wait, हमारे wait, में 1 प्रोजेक्ट नहीं minute, हुआ 1 है। minute. कहाँ पे सुमन, यूट्यूब या फिर हाँ, YouTube. हाँ, वो तो होगा ही, वो पूरा सीरीज चलेगा। ये YouTube की ही बात कर रहे हैं अरुण आप। वो पूरा सीरीज चलेगा, बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। हाँ, वो पूरा सीरीज चलेगा। नहीं सर वैसे सर बहुत अच्छा है सर अपना। What you said? PySpark का ट्रेनिंग मतलब मैंने कम ही मिला है एक्चुअली यूट्यूब में, डेडिकेटेड हाँ, टू PySpark ओनली, बट ये वाला अच्छा है बहुत। नहीं, वो पूरा सीरीज आएगा। ठीक है। हाँ, हाँ। क्योंकि सर पहले सर बहुत सारे मतलब कि अपनी जो सीरीज वो अपनी वीडियोस हैं उनमें सर बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे ना, वो सारे हाँ। क्लियर हो जाते हैं, जो जितने भी इंटरव्यू में चले आ रहे थे बहुत दिनों से अच्छा, जो ऐसा फंसे हुए क्या? थे वो। क्लियर हो हाँ जाता सर है? मेरा सर, हाँ सर बहुत सारे हो जाते हैं सर मेरे सर बहुत दिन से, मैं तो सर कम से कम 2 ईयर से इंटरव्यू दे रहा हूँ, तब जाके ये अब जाके हुए थे। क्योंकि मार्केट भी जब बनता ना ही मेरा मतलब कि एक्सपीरियंस पे भी कुछ बात फंस जाती थी। कभी बोलते थे कि मतलब कि 2 ईयर मतलब कि तुम्हारे सैलरी इतना कम क्यों है, फिर धीरे धीरे करके अब एकदम से मार्केट ओपन हुआ था तब जाके इतने आए। फिर भी मेरे पास बहुत सारे डाउट थे मतलब कि जो मतलब क्लियर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो सर मेरे डेल्टा टेबल्स वाला लेक्चर था ना, वो उसमें भी सर बहुत सारे पूछते थे एक्सटर्नल टेबल, मैनेज टेबल, मेरे को ये भी नहीं पता, ये मेरे को सही से पता नहीं थी। हाँ, कोई नहीं, अभी सीखोगे आप लोग, अभी बहुत कुछ सीखोगे, एकदम इंडस्ट्री लेवल की चीजें। कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जो रियल टाइम में यूज होता है वो सब आपके सामने रखा गया है। और हम लोग इस तरीके से बात करते रहते हैं, आदान प्रदान करते रहते हैं हम लोग अपना एक्सपीरियंस, कुछ आप लोग बोलते हैं, कुछ हम बोलते हैं। यही है लर्निंग, और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहां आकर आप अपने दिल की बात बोल सकें। नहीं तो सर जब आदमी टेक्नोलॉजी सीखता है तो आदमी को अपने डाउट्स रखने के लिए जगह नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा था कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे एक दूसरे के डाउट्स के ऊपर।
अपना सर मतलब कि मैंने सर आपने फर्स्ट क्लास में बोला था लिंक्डइन पे, सर लिंक्डइन पे भी मैं मतलब मेरा अपनी लिंक्डइन से कनेक्शन नहीं हुए, और भी मतलब मैं फ्रेंड्स वगैरह जितने होते हैं ना तो वो भी कमेंट्स करते हैं, लिंक्डइन का जितना रीच आउट होता है तो वो अच्छा लगता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, आप लोग सब जो भी पाइपलाइंस बना रहे हैं तो अपने एफर्ट को वेस्ट मत कीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिंक्डइन पे डालिए और अपनी रीच बढ़ाइए, मतलब लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ते रहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मीन धीरे धीरे आप जुड़ते रहेंगे तो आगे जाके डाउन द लाइन 3-4 साल में आपका एक अच्छा सा नेटवर्क बन के तैयार होगा। और नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, आइसोलेशन में कभी भी काम नहीं करना। आइसोलेशन में काम करने से होता है क्या, मोटिवेशन नहीं मिलता आपको, पुश नहीं मिलेगा कि मैं और मेहनत करूँ इसमें, मैं और मेहनत करूँ। अगर आप एक कम्युनिटी में रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे ये कर रहा है मैं भी करता हूँ। गेटिंग द पॉइंट, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ सर, मैं सर किसी से कनेक्ट नहीं हूँ, अपने अपने जो ये टीममेट्स हैं इनसे सर हो जाऊंगा, तो मतलब कि अपने Correct, correct, व्हाट्सएप very पे true. लिंक, क्या बोले अपने सुमन? ग्रुप में लिंक भेजूंगा। It's हाँ very true. Network हाँ, इट्स network वेरी ट्रू। building. यस यस, कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको मजा आने लगता है। और एक्चुअली मजा आना आपका बहुत जरूरी है नए नए चीज हाँ सर, को सीखने में और मतलब उसमें करियर LinkedIn बनाने में। LinkedIn तो लॉजिक वही है ना. एग्जैक्टली। सर कम्युनिटी सर उससे हो जाती है ना सर, सबसे बड़ा दिक्कत रहता है ना लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट करें कोई लाइक वैक कुछ भी नहीं करे, पूरा खाली खाली सा पड़ता है, तो कोई नहीं नहीं नहीं, करता वो तो फिर वो सर धीरे धीरे डालने का मन धीरे भी नहीं धीरे करता। नहीं नहीं, धीरे धीरे करके बिल्ड होगा। आप लोग, वही मैं बोला कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो भी पाइपलाइंस बना रहे हो उसको डालो, और जो भी पोस्ट करो उसमें एक फोटो डालो। फोटो से क्या रीच बढ़ता है, ठीक है। और टैग करो, जैसे मुझे टैग कर सकते हो, मेरा थोड़ा बहुत नेटवर्क है तो उससे क्या होगा, आपके पोस्ट का रीच बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, अगर आप लोग का नेटवर्क है तो आप लोग बोलो मैं भी आप लोग को टैग कर दूंगा, तो ऐसे क्या होगा, सबका रीच बढ़ने लगेगा। रीच बढ़ाना सबका बहुत जरूरी है। Hello, Arun सर sir. धीरे से। यस, हु इज दिस? Sheetal. Sheetal Badu. यस यस शीतल, यस। Yeah, प्लीज टेल। finally I have joined. Um, यस। yeah, since 2 days back I have started with the recordings, हाँ हाँ हाँ। and this is the first Q&A session I have joined. But yeah, really feeling very nice that I'm at right place, and feeling थैंक यू motivated also with थैंक यू। such a nice group. Yeah, so I will keep progressing, and यस, with that I will ask questions in next sessions also. But this is very informative. Thank you so much. थैंक यू शीतल फॉर योर And काइंड वर्ड्स। only the एंड thing what I feel is that I have time limitation यस along with यस, the project work and other responsibilities. I should get at least 2-3 hours of daily practice would be sufficient, sir. see, 3 hours, I mean it will be difficult for you to complete in 3 hours. Suman, it takes 4-5 hours, right, for one video to get watch that video and Yes, replicate that. and also replicate that a video. I mean, Yeah. watching and replicating is also very much important actually, because you will So forget Okay. there are many things that you have to do hands-on on yourself. Hmm. At least 3 hours, 3 to 4 hours is good ideally. Okay. Okay. Yep. I mean, this is what I am trying to Also, get like, yeah, time. in the Yeah, weekend, please like if tell you me. can give some time, no, in the weekend, like if you can, Sheetal, give some time. Hmm. I mean, you have to pull some time. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Sure. I will try. Thank you. yes, Sitin, let me know, like, if you face any doubt while going through the videos, just have a notebook with you, okay? You can keep noting Yes. down Yes. all the doubts. I have already started taking notes while going through Yes, the sessions. It's just that yeah, the hands-on I am not able to because I have to still create the account and yeah. that is pending. But yeah, sure. Do the I'm in touch hands-on. with Anup and Nitin Mukesh sir. Okay. So if anything required, I reach out to them. Yes, yes, sure. Okay. Thank you. Thank you, Sitin. Okay. So let's wrap up for today. It was a really lovely session today. And again, we will connect tomorrow. And I will bring Shubham tomorrow in tomorrow's session.
in front of you. He will be sharing his journey, how he prepared, and you guys also can put up any question that you have in your mind in front of you. Okay. So if no one has any Thank you, question, sir. we can wrap up for today. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye. you, Take sir. care. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you.